Hello students, today we are going to discuss a next topic, that is component of aggregate demand. So there are basically four component of aggregate demand: consumption expenditure, investment expenditure, government purchase or the expenditure, and the net export and import. So first of all, what is consumption expenditure? ਕੰਜ਼ਪਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੰਜ਼ਪਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਇੱਕ ਮੇਨ ਕਹਿ ਲਓ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ। ਸੋ ਕੰਜ਼ਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡਿਟਰਮਾਈਨਡ ਔਰ ਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਬਾਏ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਇਨਕਮ। ਸੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਇਨਕਮ? ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਇਨਕਮ ਜੋ ਉਹ ਵਾਲੀ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਕੋਲ ਲੈਫਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਫਟਰ ਪੇਇੰਗ ਆਲ ਦਾ ਟੈਕਸਿਸ ਔਰ ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਰਜੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਕੰਜ਼ਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦਾ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਇਨਕਮ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕੰਜ਼ਪਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਔਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੋਸਿਟ ਟੂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਰਜੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਵਾਲਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਨਕਰਡ ਔਰ ਡਨ ਬਾਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਔਨ ਦਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਗੁਡਸ। ਕੈਪੀਟਲ ਗੁਡਸ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਪਲਾਂਟ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਵੈਂਟਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਇਨਕਲੂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਫॉर द परचेज प्रोड्यूसर्स ड्यूरेबल इक्विपमेंट, न्यू कंस्ट्रक्शन हो गया एंड द चेंज इन द इन्वेंट्रीज। देन इज ए गवर्नमेंट परचेज। थर्ड कंपोनेंट एग्रीगेट डिमांड है गवर्नमेंट परचेज और द एक्सपेंडिचर। इन द मॉडर्न टाइम्स the government has emerged as an important buyer of the goods and service. So the functions of the government have increased manifold. Government has to make arrangements for the various public utilities like roads, hospitals, schools, water supply, electricity supply, defense, law and order। ਡੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਾਅ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਰੂਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਹੋਸਪਿਟਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਲਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਔਰ ਫॉर द ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਡਿਮਾਂਡ ਵੇਰੀਅਸ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਐਂਡ ਇਨਕਲੂਡਸ ਹਿਊਜ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ। ਜਦੋਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਦੈਨ ਜੀ ਨੈਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਇੰਪੋਰਟ। फोर्थ कंपोनेंट है जी, ठीक है जी, ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर नॉट एक्वायर्ड फिजिकली एंड मोनेटरी टू प्रोड्यूस। देखो कोई भी कंट्री जी है जी फुली एलिजिबल नहीं हैगी भी वो, ठीक है, सारी मतलब ऑल टाइप के गुड्स को प्रोड्यूस कर सकती है ना। सो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ठीक है जी, हरेक कंट्री अपने नीड्स के अकॉर्डिंग जी गुड्स में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करवाती है। इन मॉडर्न इकनॉमीज एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विस टू द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड एंड इंपोर्ट गुड्स एंड सर्विस दे नीड। जिन्नियां अपने को मतलब जड़ियाँ कह लो आप अदर कंट्री एक्सपोर्ट करते हैं प्रोडक्ट तो आप नीड के अकॉर्डिंग अदर कंट्री गुड्स को इंपोर्ट किया जाता है। सो जो आप, ठीक है जी, एक्सपोर्ट के इंपोर्ट को माइनस करते हैं अपने को नैट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर बन जाता है। सो जी नैक्सट इज़ कंजप्शन। सो देखो कंजप्शन जी एक मेन इंपॉर्टेंट एलीमेंट है जी एग्रीगेट डिमांड का। सो कंजप्शन डिपेंड करती है लैवल ऑफ द इनकम। ठीक है, ओबीयसली जी जिन्नी परसन की इनकम होगी वो हिसाब नाल ही और जी कंजप्शन आ वो होगी। ठीक है, सो फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम एंड द कंजप्शन इज नोन एज द कंजप्शन फंक्शन। So consumption function refers to a schedule showing expenditure on the consumption at various level of income। consumption function की है जी एक schedule ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਵਲ ਆਫ ਇਨਕਮ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਨਕਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। it shows how consumption expenditure with change in income। ਇਨਕਮ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਜ਼ਪਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ। ठीक है जी, सो कंजप्शन रेफर्स टू एक्सपेंडिचर ऑन द कंजप्शन एट ए गिवन लेवल ऑफ इनकम।
ਵਾਈ ਪਾਪਸਿਟੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਐਂਡ ਦ ਇਨਕਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਆਪਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਤਲਬ ਆਪਦੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਖਰਚ ਕਰਦਾ, ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਰਦਾ। ठीक है। सो कंजप्शन रिप्रजेंट्स द अमाउंट ऑफ द कंज्यूमर एक्सपेंडिचर मेड एट ए गिवन लेवल ऑफ इनकम। ओके, द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम एंड कंजप्शन मे बी आइदर फॉर द कम्यूनिटी लिए हो सकती है या एक इंडिविजुअली कर सकते, बट केन्स के सिस्टम की है जी फंक्शनल रिलेशन बिटवीन द इनकम एंड कंजप्शन है बेस्ड अपॉन द नैशनल इनकम के उपर बेस्ड होंगी है ये एंड द नैशनल कंजप्शन। सो ठीक है जी। सो आप कह सकते हैं कंजप्शन इज ए फंक्शन ऑफ इनकम। जिमें जिमें राजे अपनी इनकम के इंक्रीज या डिक्रीज आऊगा एज ए रिजल्ट अपनी जी कंजप्शन के भी चेंज आऊगा, वो वधूगी या घटूगी। ठीक है जी। सो नैक्सट देखो राजे, इन्हों आप टेबल के थ्रू रिप्रजेंट किया होया, टेबल बने हुए है जी। आप इनकम लगाई हुई है जी, एक्सपैंडिचर देखो इनकम 0 है, एक्सपैंडिचर 50 है, है ना। प्रीवियस लैक्चर के भी मैं तुहानूं यही चीज़ समझाई सी राजे, चाहे वे जदों अपना इनकम लैवल 0 होंदा दैन द परसन हैव सम कंजप्शन। ठीक है जी। लाइक दे है ना कंज्यूम समथिंग। ठीक है, दे स्पेंड मनी ऑन द कंजप्शन ऑफ द प्रोडक्ट्स। चाहे जो अपनी इनकम 0 आ बट ड्यू टू सम बेसिक नीड्स होने करके रजे एक जो परसन हैगा, एक जो कंज्यूमर हैगा रजे पैसा स्पेंड करूगा। ठीक है। उस तो बाद कह रहे जिमें जिमें एस इनकम इनक्रीज होती जा रही है अपनी, तो अपना कंजप्शन लैवल ही चेंज होता जा रहा है। बट यू सी व्हेन द टोटल इनकम इज़ 200 द टोटल कंजप्शन इज़ आल्सो 200। ठीक है। देखो 0 से 50 या 100 होगी इनकम, वो 120 होगी, 200 इनकम होगी, 200 कंजप्शन होगी, 300 इनकम होगी, कंजप्शन 250 है। हुण अपनी इनकम ज़्यादा हो रही है, कंजप्शन अपनी घट रही है। ठीक है जी। हुण इहदा की मतलब है राजे, डायग्राम देखो, देखो इहदा मतलब ये है भी जिवें ओ एक्सिस ते राजे आप इनकम लै रहे हैं, ओ वाई ते आपां कंजप्शन लै रहे हैं। जिहड़ा 45 का एंगल है अगर जी अपना वाई इक्वल टू कंजप्शन सी मतलब इनकम इक्वल टू कंजप्शन है इत्थे, ते जिहड़ा कर्व है जी अपने को सी है। हुण देखो ये की है, जिमें जिमें जी अपना इनकम लैवल इनक्रीज हो रहा सी, अपनी कंजप्शन भी इनक्रीज हो रही सी, बट सम एक 1 पॉइंट पर आके देखो इस पॉइंट पर आके 200 इतने सेम हो गई। उस तो बाद इनकम बढ़ रही है, कंजप्शन बढ़ रही है, बट डिफरेंस देखो एज कंपेयर टू द इनकम कंजप्शन इज़ लैस। ठीक है। जे इनकम 300 कंजप्शन 250 दी ही आ, इनकम 400 है कंजप्शन 290 दी ही आ। ठीक है जी। सो ये डायग्राम देखो, जो आओ वाई अपनी चेंज हो रही है जी। ठीक है जी। कंजप्शन अपनी हमेशा इनकम जी अपनी इनकम है 0 तो शुरू हो रही है, बट जी कंजप्शन वो अपनी 50 तो शुरू हो रही है। ठीक है। हम देखो जो तुम ड्रॉ करोगे ना, ठीक है, देखो ठीक है। उस तो बाद कंजप्शन आ गई, इतने इक्विलिब्रियम बनता है, जो थोड़ा 200 से वो इतने आ गया, वेयर जी वाई सी इक्वल ठीक सी दे, इतने वाई इक्वल टू सी है, कंजप्शन इक्वल टू इनकम है, इनकम इक्वल टू कंजप्शन है। इस तो नीचे जो आह वाला पोर्शन है जी, एक आह वाला पोर्शन इतने की है, जो आह वाली चीज़ है जी अपनी की है वाई है, इनकम है, आह वाली की है अपनी कंजप्शन है, सी है। ठीक है। हम देखो तुम की देखने भी इक्विलिब्रियम तो नीचे ई तो नीचे जी अपनी इनकम आ घट है, बट जी कंजप्शन लैवल है जी आ देखो ये की अपने को ज़्यादा, बट जी इनकम है वो नीचे है। हुण इक्विलिब्रियम तो गांह देख लो, इक्विलिब्रियम तो गांह की हो रहा है जी अपनी इनकम फॉरवर्ड है गांह हो रही है, बट जी कंजप्शन जी है इनकम तो नीचे है। ठीक है जी। हाँ देखो यही चीज़ है, देखो जो नीचला पोर्शन है डिससेविंग आ, डिससेविंग की होंगी है जिथे एक परसन जोड़ा है जी आपका कोई भी पैसा सेव नहीं कर रहा, मतलब जो वो पहला सेव पिया से आप इतने वो भी यूज़ करांगे, बिकॉज क्यों, क्योंकि अपनी जी कंजप्शन हैगी रजे वो ज़्यादा है। ठीक है जी। अपनी कंजप्शन जी हैगी रजे वो ज़्यादा, बट अपनी इनकम घट है, इतने पर डिससेविंग हो रही है। हुण इक्विलिब्रियम तो बाद की होगी अपनी इनकम ज़्यादा होगी, सेविंग घट गई, सॉरी कंजप्शन घट गई,
ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਘਟ ਗਈ, ਇਨਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਡੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਆਪਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਇਨਕਮ ਦਾ ਕੁਛ ਪਾਰਟ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ, ਕੁਛ ਪਾਰਟ ਉਹ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹੋਪ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ।